-40 seconds. PS2 VHPP opened. -35 seconds. -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PS2 VHPPs are opened. धड़कनों को रोकने वाली -20 घड़ियां। seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3, 4. Lift off normal. Auto tracking. Before tracking. First stage performance normal. +20 seconds. विहंगम दृश्य PSLV C38 का Airlift stop point ignited. ये रोरिंग साउंड गर्जना हमसे दूर जाते यान +35 seconds. लगातार हमसे दूर जाता PSLV 38 अंतरिक्ष के गहन अंधकार को प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण और अनंत आकाश की नीरवता में अटूट सन्नाटे को अपनी गर्जना से भरता हुआ लक्ष्य की ओर अग्रसर जैसे समूचे विश्व की मानवता के नाम भारत का यह शांति दूत एक ही संदेश सुनाना चाहता हो कि सफलता के आसमान असीमित हैं। जरा इसकी उड़ान देखिए और इसकी गतिविधियां और गंतव्य तक जाने की उत्सुकता। Ground lift strap-on separated. स्ट्रैप-ऑन्स अलग हो चुके हैं PS2 और change route बिल्कुल SCPT2. अपने Auto in main auto. अनुमानित पथ पर आगे बढ़ता हुआ चेहरे पे हंसी की एक छोटी सी मुस्कान के रूप में आपके सामने +1 minute 30 seconds. बिल्कुल उसी गति से गतिमान PSLV Airlift strap-on separated. इस समय जो स्ट्रैप-ऑन्स ग्राउंड पे लिट हुए थे, जो एयर में लिट हुए थे, वो सेपरेट हो चुके हैं करीब करीब। जी हाँ, PS1 First stage separated. प्रथम Second stage चरण engine भी started. विलगित हो चुका है यान से और द्वितीय चरण +2 minutes. 108.9 सेकंड के बाद में प्रज्वलित होते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता हुआ। Second stage performance normal. जो ग्राफ आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं टाइम वर्सेस रिलेटिव वेलोसिटी का, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस पे टाइम और वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे रिलेटिव वेलोसिटी है। इस समय 140 सेकंड क्रॉस करते हुए हम 2.15 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और हमसे इस प्रक्षेपण स्थल से लगभग 130 किलोमीटर दूर जा चुका है यान और 119 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। मिशन डायरेक्टर श्री जय कुमार Heat जी। shield separated. जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण होता है ये, जो ऊष्मी सुरक्षा कवच है, Second जो stage पेलोड performance फेयरिंग है, normal. हीट शील्ड वो भी सेपरेट हो चुकी है 157.4 सेकंड पे और आगे जो बहुत महत्वपूर्ण घड़ी है वो PS2 के सेपरेशन की है, द्वितीय स्टेज के विलगन की है। ये द्वितीय चरण जो है वो करीब करीब 159 सेकंड से 261 सेकंड तक प्रज्वलन काल है उसका और इस समय लगातार जो अनुमानित पथ है और अवलोकित पथ है एक दूसरे को फॉलो करते हुए। The next important event is second stage separation, which will take place in another few seconds. Performance of the vehicle you are seeing on the screen in terms of the graphs. That Second is stage time performance versus normal. altitude and time versus the relative velocity. What right now you saw is time versus relative velocity. Ground trace of PSLV is also shown, varying with time. Red curves pre-flight condition, while the green one is telemetry data being received from the upper stage of the rocket or the observed one. Other parameters which you can closely watch is azimuth and elevation, which are very, very important. So here you are seeing range versus altitude rated. Second stage engine shut off. सेकंड स्टेज Third के stage ignition को ignited. बंद कर दिया गया और तृतीय जो स्टेज है वो प्रज्वलित हो चुकी है। दोनों चरण सामान्य निष्पादन के साथ यान से अलग हो चुके हैं
और Third stage performance normal. थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस इज नॉर्मल सो फार. Second stage got separated nominally, followed by ignition of third stage. We'll have this third stage for almost 490 seconds before the fourth stage is ignited, where is duration of coasting is close to 116.44 seconds. Maybe shortly we can hear the announcement of PS3 burnout. Plus 5 minutes. Third stage performance normal. लगभग 5 मिनट समय व्यतीत कर चुके हैं और थर्ड स्टेज का जो परफॉर्मेंस है वो सामान्य है. On ground, along with the solid core stage, 4 solid strap-ons also gets ignited. This followed by the ignition of the remaining 2 strap-on boosters as 25 seconds into the flight. The vehicle to a height of 68.2 kilometers and imparts on velocity of 2.16 kilometers. The separation of the first stage takes place at 1/10 velocity share of first Third stage. stage performance normal. पोंगिनान जी, रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर, जिनका अनाउंसमेंट आपने सुना परफॉर्मेंस नॉर्मल के लिए. द फर्स्ट स्टेज इज performing, injecting around 25% of the velocity. During the second stage, flight separation of payload fairing takes place when the vehicle has reached an altitude of 121.683 kilometers. At this time, the velocity was around 22.5 kilometers per second. The second stage takes the velocity to an altitude of 225 kilometers. We are 6 minutes away after T0. Third stage performance The velocity normal. at PS2 separation is 4 kilometers per second. Range operation director, and this is closer view of the vehicle performance. Third stage action completed. The third stage action completed. Coasting phase commenced. Is burnout over, and now coasting phase has initiated. Actually, the coasting phase is balancing the energy, the potential energy and kinetic energy. If you look at the graph, time versus the relative velocity, because engine is shut off, so no imparting the velocity. So what goes is really vehicle will be simply climbing up, but the velocity will be coming down. Vehicle coasting phase performance normal. So the coasting phase is normal. ये वो निशक्ति काल होता है जहाँ पे Plus 7 minutes. निष्पादन अभी तक नॉर्मल है. इस समय जो तृतीय चरण है उसके इंजन को दहन को बंद कर दिया जाता है और चौथा चरण उसका जो प्रज्वलन है वो अभी शुरू नहीं किया गया है. द PS2 सेपरेशन एट दैट टाइम द वेलोसिटी वाज 4 किलोमीटर पर सेकेंड और इस समय तक 53% ऑफ द टोटल वेलोसिटी दे दिया जाता है. कोस्टिंग इज वेरी नॉर्मल. एक उद्घोषणा. Coasting phase performance normal. जी हाँ, पुनः एक बार उसी की उद्घोषणा कि जो परफॉर्मेंस वो नॉर्मल कोस्टिंग फेज का, और थोड़ी ही देर में फोर्थ स्टेज का इग्निशन प्रारंभ किया जाएगा. द वेलोसिटी एट थर्ड स्टेज सेपरेशन विल बी क्लोज टू 5.9 किलोमीटर पर सेकेंड. इवन आफ्टर द स्टेज बर्नआउट इज सेपरेशन इज डिलेड बाय ऑलमोस्ट 220 seconds to ensure that there is no residual thrust from the motor. Plus We 8 can see minutes. the time versus velocity. We are 8 minutes into the flight. Chairman, Center Director, VSSC and Center Third Director stage separated. Shah. Third stage is separated. And now, fourth stage will get ignited in a couple of Fourth seconds. stage engine started. Yes, fourth stage engine also got ignited, and now we are almost 8 minutes 30 seconds in the flight. तो चतुर्थ चरण प्रज्वलित हो चुका है और हम अब अंतिम चरण के प्रज्वलन की सामान्य निष्पादन Fourth की stage performance normal. घोषणा सुनेंगे और सुनी आपने. इसके साथ ही हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि आंकड़े जो हैं वो सामान्य निष्पादन की प्रदर्शन करते Plus हुए 9 minutes. करीब करीब 9 मिनट का समय फ्लाइट का व्यतीत हो चुका है. इस चतुर्थ चरण में जो लिक्विड स्टेज है उसमें करीब करीब 2.5 टन ऑफ प्रोपेलेंट भरा हुआ होता है. Fourth stage performance normal. 44.4 मीटर ऊंचे 320 टन भारी रॉकेट का ये 40वीं फ्लाइट है जिसे PSLV 38 का नाम दिया गया, जिसमें कुल 31 उपग्रह प्रक्षेपित किए जाने हैं.
ये एमसीसी के अंदर का दृश्य, जहां पे विभिन्न स्क्रीन्स पे अलग अलग आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। इनफैक्ट require high inclination of 9.4 degree cartosite, so the satellite will be maneuvering to get look at various passengers to prefer the same inclination, Fourth stage so there is performance. no injecting satellite with the same orbit. The operation director just now announced the proposed stage to be normal. Now, the duration of the fourth stage is roughly 457.8 seconds, and we have already 10 minutes 33 seconds in the flight, and we are 491 kilometer altitude and 2,375 kilometers away from the launch pad. The performance is very satisfactory. All the customers will be watching this mission very, very closely, because Plus 11 minutes. from various Fourth countries stage performance normal. the performance is normal. I will just Sharon request LOS. our camera team to show the foreign delegates, as they are eagerly for performance to be very satisfactory and also that LOS. they can be injected into the final orbit what they desire. अभीक्षित कक्षा की ऊंचाई, इंक्लिनेशन, ये सभी जरूरी होते हैं जब एक अभियान सफल माना जाता है। जैसा मैंने आपसे बताया था कि इसमें 29 उपग्रह जो हैं हमारे विदेशी उपभोक्ताओं के हैं, और एक जो उपग्रह है वो हमारे भारतीय विश्वविद्यालय का है, नूरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी न्यूसैट। बाकी जो 29 उपग्रह हैं वो Fourth विदेशी stage उपभोक्ताओं के performance हैं। normal. चौथे चरण का परफॉर्मेंस 12 मिनट तक बिल्कुल सामान्य। देखिए हमारे कैमरामैन अगर फोकस करते हैं विदेशी उपभोक्ताओं पर, जिनकी सांसें भी बिल्कुल इस प्रक्षेपण पर टिकी हुई। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद हम कैमरामैन को देते हैं। ये विदेशी उपभोक्ता बड़े बेसब्री से उस घड़ी की प्रतीक्षा करते हुए, और ये जो दृश्य आप देख पा रहे हैं ये यान पे लगा हुआ कैमरा है जो लगातार उसके अलग अलग पृथक्करण के घटनाएं उनकी फोटोग्राफ लेगा। ये दूसरे देशों के जो उपभोक्ता हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक रिपब्लिक, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लैटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सभी बेसब्री से जो कुछ ही घड़ी में पूरा होने वाला है चतुर्थ चरण का प्रज्वलन, उसकी प्रतीक्षा करते हुए। One of the aspects of launch clearance procedure is a space object proximity analysis, wherein analysis is done. We assess the collision risk between the already existing space object vis-a-vis the upper stage of the launch vehicle and the Cartosat 2E satellite once it reaches the orbit. Such potential collisions during the mission is avoided by adjusting the time of launch within the specified launch window. Space object proximity analysis is carried out as a standard practice for all launches from Sriharikota. There is no such concern for this mission. Plus 14 minutes. This is very closer view of various Fourth senior stage performance center normal. directors. Performance is normal, as range operation director has just now announced, and we are very closer. We are close to 3,730 kilometers away from the launch pad, as you are observing in the screen, and we are following exactly the pre-estimated flight path. The observed flight is exactly the same, and we are very close to the fourth stage
completion, ignition completion, which will take place shortly. Yes, we have climbed up to 510 kilometers, and any moment now the separation will be announced. We are waiting for that. 893.5 seconds have already elapsed in the flight. 15 minutes. 15 minutes the time. Relative velocity which we got is 7.4 kilometer per second, and altitude 510 kilometer. Fourth stage performance normal. अभी तक सामान्य निष्पादन चतुर्थ चरण का, और इस चौथे चरण के प्रज्वलन के बाद कुछ ही क्षणों में कार्टोसैट 2E का सेपरेशन कर दिया जाएगा। हम उस घड़ी की प्रतीक्षा में बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीक, करीब करीब 935 सेकंड बीत चुके हैं और 586 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी वेगमान प्राप्त कर चुके हैं। यहां पे आप देख सकेंगे कि हम कितनी नजदीकी आंकड़े प्राप्त कर चुके हैं। इंक्लिनेशन ऑर्बिट का 97.43 डिग्री। फोर्थ स्टेज इंजन शट ऑफ। और चौथा चरण का जो इंजन है वो बंद कर दिया गया है। सारे आंकड़े, अभीष्ट आंकड़े प्राप्त किए जा चुके हैं। ऊंचाई एपोजी और पेरिजी के बीच में बहुत ही नजदीक ऑलमोस्ट सेम 506.8 किलोमीटर की। और जैसा मैं देख पा रहा हूं कि इंक्लिनेशन 97.44 डिग्री, और अब किसी भी क्षण हम बहुत ही नजदीक हैं जब कार्टर 2E का सेपरेशन कर दिया जाएगा, वो करीब करीब 40 सेकंड के बाद कट ऑफ इंजन के, और अब किसी भी क्षण इसकी उद्घोषणा आप सुन सकते हैं। वेरी शॉर्टली विल बी सीइंग द कार्टर 2E सेपरेशन। कार्टोसैट सेपरेटेड। 1000 क्षणों के बाद ये घड़ी आई जब कार्टर 2E को यान से अलग कर दिया गया, और कुछ ही क्षणों में न्यूसैट जो भी भारतीय विद्युत वो भी सेपरेट हो चुका है 10 सेकंड के बाद, और अगले 10 क्षणों में CESat सेपरेटेड, वो भी अलग हो गया। इसके बाद कुछ उपग्रह जो हैं, कुल 7 उपग्रह आप मॉरिशस से उनकी विजिबिलिटी बनी रहेगी, और ये जो आप देख रहे हैं ये यान में लगे हुए कैमरे से प्राप्त सेपरेशन के कुछ क्षण हैं जो बड़ा महसूस करते हैं जैसे आप यान में बैठे हो और आप स्टेपांस और फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज को यान से अलग होते हुए देख पा रहे हो। ये वो बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं यान की सेल्फी है, जैसे हमारे सैक के डायरेक्टर ने एक बार उद्घोषणा की थी कि यान में लगा हुआ कैमरा अपनी सेल्फी लेता रहता है, तो ये वो सेल्फी थी जो यान में लगे हुए कैमरे ने भेजी। और आप देख पा रहे हैं कि उतनी ऊंचाई से जब अलग होते हैं तो कैसा दृश्य होता है, कैसे क्षण होते हैं, कैसा हम पहले केवल अनुमान लगा सकते थे, लेकिन अब हम स्क्रीन पे बाकायदा देख सकते हैं कि उस ऊंचाई से अलग हुए जो स्टेजेस हैं, चरण है, वो कैसे दिखाई पड़ते होते हैं। इनफैक्ट जो CSat 1 के बाद वाले उपग्रह हैं उनकी विजिबिलिटी मॉरिशस से बनी रहती है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं TY सेपरेशन भी हो चुका है। उसके बाद DSat 1 का सेपरेशन हुआ 1098.9। तीसरोसैट 6 वो भी 1103 सेकंड में अलग हो चुका है। और अगला सीक्वेंसर ऑन कर दिया गया है, और QP 5.4 सेपरेशन होने के बाद सेपरेशन होते रहेंगे, लेकिन इनकी रिकॉर्डिंग ऑन बोर्ड होगी जो आपको लगभग 5 से 10 मिनट के बाद ट्रॉल से हम जब डाउनलोड करेंगे डेटा दिखा पाएंगे। तो QP 5.4 भी अलग हो चुका है। इसके बाद के सेपरेशन के बाद के जो पृथक after about 7 minutes from now.